ये लुधियाना जलंधर बाईपास का फास्ट टैग लेन है और देखो इसमें भीड़ कितनी लगी हुई है। फिर कहते हैं कि फास्ट टैग से जो है भीड़ कम हो जाएगी। मतलब वेट तो उतना ही करना पड़ रहा है जितना पहले कैश में करना पड़ता था। हैं तो इसका चीज़ का फ़ायदा क्या है? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing? So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing, sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion, even though I offer all of the solutions. I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you I never तो ये देखो भाई लोग, हम आ गए हैं चिंतपूर्णी की चढ़ाई और ये चल रहे हैं धड़ाधड़ मोड़ यहाँ से। पहले ये रास्ता बिल्कुल सुनसान होता था, आज से 5-7 साल पहले। और इन 5-6 सालों में इतनी ग्रोथ हो गई इस रास्ते में, कहीं कहीं ढाबे खुल गए हैं, दुकानें खुल गई हैं, मतलब हर जगह बहुत कुछ देखने को मिलेगा। वो टेंशन नहीं रहेगी, यहाँ कोई बंदा नहीं मिलता, कुछ नहीं है, जंगल है, ऐसा वाला सीन खत्म हो गया। यहाँ नेटवर्क भी नहीं आते, एयरटेल के बीच में चले जाते हैं यहाँ पर 5-6 किलोमीटर के बीच में। सिर्फ जियो का आता है पूरा प्रॉपर नेटवर्क, इसके अलावा नहीं आता किसी का। अगर आप लेफ्ट साइड में देखोगे तो पूरे पहाड़ ही पहाड़ हैं। यहाँ से दिखेंगे पूरे दूर तक पहाड़ पहाड़ है, और पहाड़ों के उस पार जो है डैम बना हुआ है। यहाँ से प्रॉपरली दिखता नहीं है, गाड़ी चलाते हुए रोकनी पड़ती है गाड़ी, तब प्रॉपर दिखता है। रोकने का समय नहीं है हमारे पास, क्योंकि हमने कहीं पहुँचना है और वापसी भी आना है आज ही। तो ये एक तरीके का स्पीड रन है। स्पीड तो क्या रन है, मतलब आराम से ही चल रहे हैं। शाम हो जाएगी हमें आते आते, पाया कांगड़ा होकर निकलेंगे। देखो बंदरों की टोली, ओए ओए ओए। हिमाचल से सस्ती शराब, बताओ। शराब सस्ती है लेकिन इलाज सस्ता नहीं है। चलो जी, ये देखो यहाँ पे बाउंड्री जो है पंजाब की एंड हो जाती है, ठीक है। और यहाँ जैसे ही एंड होगी, अब यहाँ पे आप वेलकम टू हिमाचल आ जाएगा। ले जी जी, देवभूमि हिमाचल में आपके आगमन पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। सॉन्ग भी हटाना सी मैं सॉन्ग कर देना। Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget.
भाई लोग ये आगे चिंतपूर्णी, यहाँ से अगर आप लेफ्ट मुड़ जाएंगे तो चिंतपूर्णी आ जाएगा और राइट मुड़ जाएंगे तो हम कांगड़ा की तरफ। ये चिंतपूर्णी का रोड गया, यहाँ से 2 किलोमीटर की रेंज के अंदर चिंतपूर्णी है। और यहाँ से हम राइट हो गए, राइट हम हो गए कांगड़ा के लिए। कांगड़ा, पालमपुर, धर्मशाला, मकलोडगंज, तो जो भी एरिया यहाँ है। Kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I'd like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb. I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it. तो मैं लगता है रिकॉर्डिंग ही करेंगे सारा दिन। रिकॉर्डिंग करने वास्ते आए हैं भाजी ਆਪਾਂ ਹੁਣ। ये आ गया राधा स्वामी सत्संग व्यास। आ गए अपने पहाड़। ओ देखो ब्रो पहाड़। ये आ गए सामने देखा के सामने तो देखो। सारे कुत्ते जीते हमारे। रविवार को आधे से ज़्यादा पंजाब तो हिमाचल में होता है और लगभग 90% होशियारपुर इधर होता है, क्योंकि होशियारपुर के पास ही है ये, बिल्कुल हिमाचल टच करते हैं। तो लोग भी कोशिश करते हैं कि संडे है चलो बच्चों को लेके घूमा जाए फिरा जाए, बच्चे भी खुश, घर वाले भी खुश, घर वाले भी खुश, और थोड़ी सी आउटिंग भी हो जाती है, माइंड फ्रेश भी हो जाता है। जिनकी संडे को छुट्टी है उनकी, और जिनकी संडे को छुट्टी नहीं है उनकी मंडे को छुट्टी है, तो मंडे को निकल आते हैं। साथ में ज्वाला जी, चिंतपूर्णी, ये सब जो पास पास में यहाँ घूम आते हैं, जो दैवीय स्थल है, तो ये भी सही है। काश ऐसा हम पाकिस्तान और पीओके में भी जा पाते। मोदी जी से दरख्वास्त थोड़ा जल्दी करें जो भी करना है। क्योंकि हम भी चाहते हैं कि हम भी पीओके घूमें। ये पहुंच गए जी हम देहरा, और देहरा का ब्रिज आ गया पूरा कवर किया हुआ। ये है ब्यास नदी। अभी आप लेफ्ट में देखोगे, ठीक है, तो सारी की सारी ये देखो ब्यास नदी है। इतना पानी है इस वक्त इसमें, बहुत पानी है। काफ़ी पुराना ये ब्रिज बना हुआ है, सिंगल ब्रिज है जो हिमाचल को जोड़ता है। अगर ये गया तो हिमाचल से रिश्ता टूट गया। और अभी आगे चौक आएगा, अगर चौक से अगर आप राइट हो जाओगे तो राइट में आ जाएगा ज्वाला जी, और चौक से अगर लेफ्ट हो जाओगे तो आएगा देहरा, ठीक है। और चौक से ही अगर आप सीधे चले जाओगे तो आ जाएगा कांगड़ा। जय बजरंग बली। जय बजरंग। ये राइट चले गए तो ज्वाला जी, लेफ्ट चले गए तो देहरा, और साथ में चले गए तो कांगड़ा, धर्मशाला, बैजनाथ। वैसे बैजनाथ का रास्ता यहाँ से भी है,
यहाँ से भी है, जहाँ मर्जी से आप जा सकते हो, मतलब लेफ्ट से भी है, अगर राइट लेंगे आप। अब जो है हम कांगड़ा की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि हम लोग आ चुके हैं अभी हिमाचल के अंदर, और ये ना लेंस थोड़ा सा ना ख़राब हो गया, इसको कुछ है नहीं है बस साफ़ करने के लिए। कागज़ से करने की कोशिश करता हूँ, कागज़ से अगर हो गया साफ तो हाथ से दाग पड़ जाएंगे। हाँ हो गया। मैं बता रहा था कि हम आ गए हैं हिमाचल, और आज ही शाम को हमारी वापसी है। मतलब शाम को मैंने फिर दोबारा लुधियाना पहुंचना है किसी भी हालत में। बाकी अभी दिखाएंगे, अभी बीच बीच में जैसे ही पहाड़ पर्वत शिलाएँ आ रही हैं। तो ये देखो मेरे पास जो है, मेरे पास ये 2 डॉग्स हैं जो सेल के लिए जा रहे हैं, ऑलरेडी सेल हो चुके हैं। ये जेड ब्लैक लैब्राडोर है, फुल हेल्दी है, अच्छा कोट स्किन है, अच्छा कोट है और अच्छा मतलब इनका लुक है। फैमिली इनके जो मतलब जो ब्रीडिंग लाइन होती है वो बहुत अच्छी है, हेल्दी है काफ़ी बच्चे। बस ये है कि प्राइस के मामले में कॉम्प्रोमाइज़ करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लोग समझते नहीं हैं, क्योंकि इनको पालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ब्रीडिंग कराना, उसके बाद उसको मेंटेन करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है और थोड़ा सा कॉस्टली है। लोग समझते नहीं हैं, तो चलो जो समझते हैं वो अपने आप पे करते हैं, तो बहुत बड़ा कोई इशू नहीं है। तो चलिए मिलते हैं फिर आगे, थोड़ी सी फिर मूड करेगा तो। ये आगे जी लेफ़्ट साइड में देखोगे आप, ये आगे हमारी पहाड़ियाँ, वाइट पहाड़ियाँ। ये बस उस पार जो दिख रहा है वो कांगड़ा शहर है। इस पहाड़ी को पार करते ही कांगड़ा शहर आ जाएगा। जिसका है बहुत ही सुंदर नज़ारा है। सामने की तरफ देखोगे तो पूरे के पूरे पहाड़ देखने में पास लगेंगे, लेकिन एक्चुअली में बहुत दूर है, बहुत ज़्यादा दूर है। और पीछे कुत्ते जो हैं वो बिल्कुल भी शांत नहीं हो रहे, बस आधे पौने घंटे की बात हो रही है। उसके बाद शांति ही शांति। सुबह के बज चुके हैं 10 बजे तक हम कांगड़ा पहुँचे नहीं हैं, जबकि हमें पहुँच जाना चाहिए। छेड़ तो मारो नहीं छेड़ेगा हैं? चल रहा है वो। मेरा उल्टा फोकस है जाना। ये अब हम यहाँ जो गुफा है वहाँ पे एंटर होने वाले हैं थोड़ी देर में। ठीक है, हमारे आगे हिमाचल की बस चल रही है प्राइवेट, और कुत्तों की आवाज़ कंटिन्यू आ ही रही है, जैसे कि आप सुन ही रहे हो। नज़ारा भी है, लेकिन अभी आगे जो है हमारी बस चल रही है। बस नहीं होती तो देखो लेफ़्ट साइड में देखो आप, पूरा नज़ारा ही नज़ारा है, पूरी ग्रीनरी पहाड़। ठीक है, राइट साइड में देखोगे तो वाइट पहाड़ आपको दिख जाएंगे। देखो सामने की तरफ, ये देखो सामने की तरफ। अभी बर्फ़ थोड़ी कम है इसमें, क्योंकि बर्फ़बारी अभी हुई नहीं है प्रॉपर। जैसे बर्फ़ होगी तो सारे पहाड़ जो है वाइट कलर के होते हैं और इतने शाइन मारेंगे कि पूछो मत। भाई अब कांगड़ा में हम लोग एंटर करने वाले हैं और 10:30 हमें यही हो गया। ट्रैफिक जो थी बहुत ज़्यादा थी,
ट्रैफिक के चलते गाड़ी जो है बहुत स्लो चल रही है, जिसके कारणवश हमारी स्पीड जो है वो बहुत स्लो हो गई। ऊपर से हम रुकते रुकते भी आ रहे थे। ये आ गई जी अपनी गुफा। लो जी गुफा आ गई। ये बहुत पुरानी गुफा है, बहुत पुरानी। हम सोच भी नहीं सकते सकती है। फ्लैट टायर को इन्फ्लेट करते हुए भाई साहब टाटा वाले तो दे रहे हैं इन्फ्लेटर, हुंडई वाले भी देना शुरू कर दें तो बढ़िया हो जाए। ये देखो सामने की तरफ पहाड़ ही पहाड़। घास काटने लगे हुए हैं। अब ये पूरी सर्दियों में काम आएंगे। और हम बढ़ चले कांगड़ा की तरफ। बस अब 10-15 मिनट का रास्ता रह गया बस। मैक्सिमम 10-15 मिनट में हम पहुंच जाएंगे कांगड़ा। समिल्ला 10:30 में समिल्ला पहुंच गया। लेफ्ट साइड में आपकी ट्रेन लाइन जा रही है, जो अभी चालू है कि नहीं चालू ये नहीं मुझे पता। लो भाई अगर आप लेफ्ट साइड में देखोगे तो ये कांगड़ा फोर्ट है, पूरा का पूरा हेरिटेज साइट है। यहाँ पे जाओ तो आप जा सकते हो। लोकल टिकट्स अलग हैं और फॉरेनर्स की टिकट्स अलग हैं। यहाँ पे जाके रिकॉर्डिंग वगैरह भी आप कर सकते हैं, उसके चार्जेस वगैरह अलग होते हैं, कैमरा चार्जेस अलग वगैरह होते हैं। काफ़ी सुंदर है यहाँ से। लेफ्ट साइड में देखोगे आप थोड़ा सा और पता लगेगा कितना सुंदर नज़ारा है। पूरे पहाड़ी हैं वाइट कलर की दिख रही है। जो ब्रिज है पहले यहाँ से लेफ्ट साइड से होके जाना पड़ता था कांगड़ा। अब इतना लंबा घेर काट दिया इन्होंने, सिंपल सीधा रास्ता बना दिया कांगड़ा के लिए। ये ब्रिज बनाए थे। इस ब्रिज को बनते बनते बहुत साल लगे, लेकिन इस ब्रिज की वजह से कम 15-20 मिनट बचते हैं। और सामने की तरफ देखो पहाड़ी है। और ये जो रोड में आपको बता रहा था 15-20 मिनट वाला, ये यहाँ लेफ्ट साइड से देखोगे यहाँ से निकलता था रोड, यहाँ से घूमता हुआ ये यहाँ से आता था राइट साइड से, यहाँ से कट मारता हुआ ये रहा, यहाँ से निकलता। तो काफ़ी घेर था। गाड़ी को मार दिया था, गाड़ी को मार दिया था शीशे से। राइट साइड में देखोगे तो आप रेलवे ब्रिज है। राइट साइड में वो रहा रेलवे ब्रिज, पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। बैरियर आगे बंद कर दें। तो ये देखिए अब हम आ गए कांगड़ा बाज़ार में। काफ़ी ये देखो दीवारों पे आप देखोगे तो काफ़ी अच्छी पेंटिंग्स वगैरह की हुई हैं। ठीक है, सामने देखोगे एकदम पहाड़ है। राइट और लेफ्ट में मार्केट है जो अभी तक ओपन हो ही नहीं है। अभी शायद संडे है, संडे को शायद लेट ओपन होती है कांगड़ा मार्केट ऑलमोस्ट।
अभी ओपन हुई नहीं है पूरी तरह मार्केट, अभी चल रही है मार्केट, ओपनिंग शुरू हो रही है 10 साढ़े 10 में 11-12 बजे तक। आज संडे है इस वजह से। ये लेफ्ट साइड में कॉलेज था, सामने की तरफ धौलाधार पहाड़ियाँ। शोरूम बहुत तगड़े तगड़े यहाँ पे, ये सारा का सारा जो है कांगड़ा मार्केट है। पहले ये मार्केट बहुत छोटा हुआ करता था, बट 5-6 सालों में इतना बढ़ गया कि किसी को याद नहीं। अब देखो पहाड़ ऐसे लगेंगे जैसे बिल्कुल पास में है, बट एक्चुअल में बहुत दूर है। जाते जाते बहुत टाइम लग जाएगा इनके पास, मतलब पहुँचते पहुँचते। फिर उस पहाड़ से आप ड्रोन उड़ा सकते हो। ड्रोन उड़ाने के बाद उसके मिलने की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि वो हवा इतनी तेज़ चलती है, ड्रोन वो सब उड़ जाएगा। काफ़ी लंबा चौड़ा बाजार है ये, कम से कम भी मेरे हिसाब से शायद 2 से 3 किलोमीटर का बाजार होगा। पहले नहीं था ये, अभी कुछ सालों में ही हुआ। देखने तो बड़े नज़दीक लगते हैं ना, देखने के लिए नज़दीक लगते हैं, पर एक्चुअली बहुत दूर है। और अभी आप अगर लेफ़्ट साइड में घुस जाओगे तो ये अपना ISBT है, कांगड़ा का बहुत बड़ा बस स्टैंड है, और मेरे हिसाब से सबसे पुराना बस स्टैंड, बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, बहुत पुराना बस स्टैंड है ये। हमें जाना है हुंडई के शोरूम। ये आ गया भाई हम नगरोटा मार्केट। नगरोटा मार्केट आज संडे है, हाँ संडे इसलिए शायद मार्केट अभी ओपन हुई नहीं है। थोड़ी देर में ये मार्केट भी ऑन हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। काफ़ी बड़ी मार्केट है ये, पहले छोटी सी हुआ करती थी, मतलब बहुत सारे चेंजेस हो चुके हैं। अब हिमाचल वो हिमाचल नहीं रहा, यहाँ ऑलमोस्ट 90% फैसिलिटीज़ आपको मिल जाएंगी, या उससे ज़्यादा भी। ये है मार्केट। सामने देखो ये पहाड़ में बादल से बने हुए हैं, सामने की तरफ अगर देखोगे तो शोरूम से अलग अलग यहाँ खुली नहीं है मार्केट है पूरी प्रॉपर, खुल नहीं है। राइट साइड में देखोगे ये मंदिर है, और ये जो ग्रीन कलर की आप बिल्डिंग देख रहे हैं ये HRTC का ऑफिस है, ये मतलब बस स्टैंड है। बसेज आ रही हैं यहाँ से निकल के।
सारे ख़त्म। बस इतना सही बाजार है ये। तो हमने परोर वाला जो एरिया है वो क्रॉस कर दिया है। ठीक है, और अभी ये जो एरिया है परोर के आगे वाला एरिया है, सुला वाला एरिया, सुला नाम है जगह का। एक और बार फिर से जो रेलवे फाटक है वो क्रॉस करेंगे नैरो एज का। अगर आप अपने लेफ़्ट में देखेंगे अभी तो लेफ़्ट में आपको बहुत पहाड़ दिख जाएंगे। ठीक है, अभी दिखाता हूँ मैं आपको जरा सी ये थोड़ा कम हो जाएगा। ये देखो सामने की तरफ, ये देखने में पहाड़ आपको बिल्कुल पास में लग रहे होंगे, लेफ़्ट में जो है, राइट में सामने की तरफ, लेकिन एक्चुअली बहुत दूर है। हमें ही लगते हैं कि नज़दीक हैं, बट एक्चुअली में ये बहुत दूर होते हैं। यहाँ पे पहुँचते पहुँचते बहुत टाइम लग जाए, इसलिए इतनी दूर है। ये देखो अभी आप लेफ्ट में देखोगे तो कितनी ऊंची ऊंची पहाड़ी है। तो ये देखने में पास लग रहे हैं लेकिन एक्चुअल में ये बहुत बहुत दूर है, बहुत दूर है। पहुँचते पहुँचते कई दिन लग जाएंगे, इतनी दूर है। तो ये आ गया अरला, अरला स्टेशन जो है। इसके बाद आएगा ठाकुर द्वारा। भाई अब हम हिमाचल में जो हमारा काम था वो हो गया है और हमारी जो है वापसी हो रही है। और वापसी का रास्ता हमारा बाय कांगड़ा नहीं है, वापसी का रास्ता हमारा बाय ज्वाला जी है। तो हम ज्वाला जी होकर निकलेंगे जंगलों के रास्ते से होते हुए, जहाँ से हमें शॉर्ट पड़ेगा वहीं से निकलेंगे। तो अभी आपको दिखाएंगे थोड़ी देर में ही जंगल जंगल जंगल, बड़े बड़े जंगल। अब जो हम जा रहे हैं खुंडियाबारी की तरफ जा रहे हैं, तो खुंडिया क्रॉस कर दिया हमने लगभग। तो बीच में ही है, शायद बीच में ही चल रहे हैं। बहुत ही सुंदर नज़ारा है ये। कैमरे से मैं कम रिकॉर्ड करता हूँ क्योंकि इस टाइम पे रिकॉर्डिंग के साथ गाड़ी चलाना मुश्किल हो जाता है। कभी किसी ब्लॉग में अगर कवर किया हो तो किया हो, अदरवाइज़ नहीं किया होगा। दूर तक दिख रहा है सब कुछ, दूर तक गाड़ियों तक। यहाँ से ज्वाला जी लगभग 14 या 15 किलोमीटर होगा, इससे ज़्यादा नहीं है। और सपड़ी है लगभग 13 किलोमीटर। अगर सपड़ी 13 किलोमीटर है तो वो 2 किलोमीटर और 15 किलोमीटर होगा। तो सुबह से लेके शाम तक अभी हम काम कर रहे थे और अभी मैंने आपको अपना चेहरा दिखाया है पूरे व्लॉग में। तो मैं आ गया हूँ यहाँ पे। ये जो जगह है ये सारी, यहाँ पे ये जितनी भी सारी जगह है ये सारी की सारी ज्वाला जी पड़ती है। और ये अगर आपको नीचे की तरफ दिख रहा होगा तो यहाँ पे ये रहा मंदिर, ज्वाला जी का मंदिर, ज्वाला जी देवी का।
तो काफ़ी देर बाद आए हैं और अभी जितना सोचा था उतने में हो नहीं पाया काम, तो इसलिए हम जल्दी आए और जल्दी निकल गए। सुबह निकले 6 बजे के अराउंड और अभी हम पहुंचने वाले हैं लगभग अभी हो रहा है टाइम 4:45 होने वाले हैं। 4:45 होने वाले हैं, 4:45 और 8 बज जाएंगे हमें लुधियाना पहुंचते। तो बाकी रास्ते में जो हम दिखाते रहेंगे फिर आपको क्या क्या दिख रहा है हमें, बढ़िया सीन। हम लोग निकल गए हैं, ज्वाला जी क्रॉस कर दिया हमने और अब हम जा रहे हैं देहरा की तरफ। और देहरा ज्वाला जी से लगभग 12 से 13 किलोमीटर के बीच में निकल गए हैं। जल्दी से जल्दी अब पहुंचने की कोशिश करेंगे। 5:03 अब हो चुके हैं। हम लगभग 3:40 से 40 मिनट पर निकले थे। अब जो समय हो रहा है वो हो रहा है 5:03। और ये लेफ़्ट साइड में आप देख रहे हो बरसाती खड्डे ही, बरसात में ही होती है जगह। अभी तो ये शांति बनाए रखी है इसने। मेरा आइडिया है कि लगभग 9 बजे तक हम लोग पहुंच जाएंगे। मैं भी शायद पहले पहुंच जाएंगे। मेरा आइडिया इस हिसाब से यही कहता है कि लगभग हम 9 बजे के आसपास, 8:30-9 बजे के आसपास पहुँच। ये मेरा आइडिया है। अगर हमने कहीं ब्रेक नहीं मारी तो, अगर कहीं ब्रेक मार दी फिर समय लग जाएगा। तो ये अब हम आ गए लुधियाना की तरफ। लुधियाना वाला हाईवे है ये, ठीक है। इसमें अब आ चुके हैं। तो रात हो गई है, हमें शाम को चले थे हम लगभग 3:40 के आसपास और अभी टाइम हो रहा है 8:02। तो लगभग 4 घंटे हो गए और फगवाड़ा हमने क्रॉस कर दिया है 15-20 मिनट पहले। और अभी फगवाड़ा और लुधियाना के बिल्कुल बीच में ही कहीं पर हैं हम और हाईवे पे अपन चल रहे हैं आराम से। ज़्यादा स्पीड नहीं है क्योंकि रात में ज़्यादा स्पीड करना थोड़ा सा ख़तरनाक रहता है, क्योंकि बंदे दिखते नहीं हैं, वो अचानक से आ जाते हैं। इसीलिए अभी से नॉर्मल हम चल रहे हैं, नॉर्मल स्पीड में। तो आज का जो ट्रिप था लगभग सुबह 6-6:15 बजे मैंने चालू किया था और अभी रात के 8 बज गए। मतलब कंटिन्यूस ड्राइविंग हो रही, बीच में 2 से 3 घंटे मैंने रेस्ट ली थी, बस वही रेस्ट ली थी, उसके अलावा कोई रेस्ट नहीं ली। कंटिन्यूस ड्राइव एंड रन है। और ये लगभग ट्रिप थी 450 किलोमीटर के आसपास, जिसमें 250 किलोमीटर अप्रॉक्स जो था हिमाचल में गया और 200 अप्रॉक्स किलोमीटर जो थे वो प्लेन एरिया में। तो यही था आज का ट्रिप और अभी तो हम चल ही रहे हैं। तब तक के लिए फिर बाय बाय और मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू। Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up, today's gonna be a good day.